हमारा जो अध्ययन है स्वामी विवेकानंद के विचारों का, से हम अब आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे. We start our journey of understanding the great vision of Swami Vivekananda, and in that process we were trying to understand his thoughts on especially Karma Yoga. And Karma Yoga, as we now know by this time, Swamiji has taken a very different, you can say, comprehensive coverage of this entire idea of what is karma. So karma is not just the actions, but also the thoughts which are there. He told us in the earlier session, and then he also tells us that all the actions which we see in this world, all the movements of our society. Just to take a little overview from where we left in the earlier session, all the works that we have around us are simply display of the thought. It is a display of the manifestation of the will of the people, as we saw last time. And otherwise, how do you explain this? How you can explain that there is a gigantic will, some souls come with and they do the entire world, पूरे विश्व को जो बदल देते, ऐसे इच्छा शक्ति के प्रखर सामर्थ्य के लोग कहाँ उनका जन्म होता है? किसी छोटे से घर में होता है, किसी राजप्रासाद में होता है. और अगर आपके उनके पिता देखेंगे तो ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म इस घर में हो जाएगा, इनके वंश में हो जाएगा. तो अनुवंशिकता इसको नहीं समझाती है. हेरिडिटी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, स्वामी विवेकानंद कहते हैं. ये कुछ और है, इसलिए हमें पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत ये सबको जोड़ने की आवश्यकता होती है कि जो भी पहले हुआ था, आपके पिछले जन्म में हुआ था, उसी का परिपाक है, वही कर्म लेके आप आ जाए हैं. उसी कर्मों से ये डिटरमाइन हो रहा है कि आज व्हाट डू यू डिजर्व टुडे, व्हाट यू कैन एसिमुलेट टुडे. इट इज ऑल डिसाइडेड बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज एक्यूमुलेटिंग in our entire process of our lives, and this everything is decided by that. He has told us, if what we are now has been the result of our past actions, Swamiji says, it certainly follows that whatever we wish to be is going to be a result of what we are going to do. So that means on one side karma theory is giving you a bondage of being attached to what you had done earlier. On the other side, it is also giving you great hope that you have got all the freedom to decide what you are going to become in the future, because whatever you go today, irrespectively, I mean irrevocably, that is going to have an effect of what you are going to have in the coming time, in the future. तो इसलिए एक तरफ से बंधन और एक तरफ से मुक्तता, इस प्रकार का ये दोनों का मिलाप वो अपने कर्म सिद्धांतों में हमें बताते हैं. तो इसलिए आगे वो कहते हैं कि there is no point in frittering away our energy now, because once we know this is what is the karma yoga. That means all our energy should be concentrated on only doing that as a science, and understanding that whatever I do today, every moment of it, it's very easy to say, very difficult to live. My every moment of my day, everything, when I look at my watch, sometimes we just look at the clock and start doing some work, we realize how many minutes have just gone, and every minute can have something, but I have just wasted it. Every second, one small action can be done, one thought can be brought out, at least the remembrance of some good thought by Swamiji or some great person can be done during that. One name of the God can be uttered there, but we don't do that. Most of the times, all our time you will see, means at least for myself, I'm starting with, it can be true for many of the people, that their time just simply goes. We are not watching what is happening. Most of the time of the day, simply, if we ask someone what you were doing all this time, you came to the office at 10 o'clock, now it is almost 2 o'clock, what has happened? People are not able to explain it. Why? It is because we are doing things, actions, but there is no, it's all frittering away of energy, Swamiji says. सारी शक्ति का खाली एक प्रकार से विध्वंस है. हम क्या करते हैं आजकल? तो ऐसा हो गया, बहुत सारा समय हम कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या तो फिर आप गूगल सर्च कर रहे हैं, या एक सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टा, इस प्रकार से एक समय गुजरता जाता है. बहुत देर के बाद आप उनको पूछ लीजिए कि आप इतने समय क्या देख रहे थे, तो बताना मुश्किल होता है, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से एक अर्थहीन कड़ियां बनती जाती है. थोड़े से मन को उलझाती है, कुछ मनों को टिटोलती है, कुछ उनको थोड़ी उत्तेजना देती है. लेकिन उसका स्वामी जी कहते हैं अभी आपको ये सयाना होना है, आपको एक बार ये साइंस समझ में आ गया है, तो आपकी सारी शक्तियों को यहाँ वहां डालने से अच्छा होगा कि जो आपका जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए आपका ये सारा जन्म का आपको ये एक प्रकार से यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एक आपको अवसर मिला है कि आप फिर एक बार जन्म लो मानव का. तो इसको हमें कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तरीका जो इसका, उस प्रकार से कर्मयोग से उसको जीना है. ये
ये हमें स्वामी जी बताते हैं। तो बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में हम कह सकते हैं स्वामी जी की सारी वाणी ही एक प्रकार से बहुत ही सरल लेकिन फिर भी बहुत ही गहरी। एक समय हमें हमें एक तरफ तो लगता है कि वो आसान बात बता रहे हैं, लेकिन फिर ये भी लगता है कि बहुत गहरा उसमें विचार है। कई सारे तत्वचिंतक दुनिया में हमने देखे हैं, कई सारे को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सरलता, सादगी और उसी समय किसी को भी समझ में आए ऐसी सिंपल भाषा, सीधे शब्द, और फिर उसके बाद भी तीव्रता, उसकी गहराई, उसको वो एक भी क्षण भी उसका जो मूल उसका वेदों का या वेदांत का उसके पीछे जो या योग सूत्रों का जो उसको आधार है उसको न छोड़ना। और भगवत गीता या किसी उपनिषदों के कई सारे श्लोक ऐसे ही वो बताते जाते हैं, नाम नहीं लेते कि ये इस उपनिषद का है, इस गीता के इस अध्याय से, ऐसा बताते नहीं देते वो। आप पढ़ेंगे तो बाद में आपको थोड़ा सा रुक के देखेंगे, अरे ये तो उन्होंने इस प्राचीन ग्रंथ से उठाया, वहां से उन्होंने उद्धृत किया है। और स्वामी जी कहते भी थे, कई सारे उनके उद्धरण और इवन उनकी कथाएं भी कई सारे भारत के प्राचीन जो हमारी परंपरा है, श्रुति और स्मृति है, उससे लिए थे। लेकिन स्वामी जी की विशेषता जैसा मैं कह रहा था ये थी कि वो उसको बहुत ही आधुनिक तरीके से, आधुनिक भाषा में, क्योंकि वो प्राय वो सब उन्होंने इंग्लिश में कहा, तो उस प्रकार से लोगों को समझे, दुनिया को, सिर्फ भारतीयों को नहीं पूरे मानव जाति को समझे, इस प्रकार से उन्होंने उसको रखा। उनकी कंपैरेटिवली आप देखेंगे उनका वाङ्मय बहुत ही सरल समझने को है, शब्दों का चयन बहुत ही हर एक को समझे इस प्रकार से बहुत ही खूबी से किया गया। लेकिन इतना करने के बाद भी उसके अंदर जो एक विद्युल्लता है, वो जो एक शक्ति है, वो जो प्रज्ञा है, उपनिषद कहते हैं प्रज्ञा जो होती है वो विद्युल्लता जैसी चमक जाती है, कठोपनिषद में आया। और कठोपनिषद स्वामी जी का बहुत ही अपना, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने कहा भी था कि अब मुझे नचिकेत जैसे 100 युवक दे दो और मैं पूरे भारत का इतिहास बदल दूंगा, मैं दुनिया का इतिहास बदल दूंगा। क्योंकि उसमें श्रद्धा थी, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ उसका ज्ञान था, और अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहा था। वो मृत्यु के द्वार पे भी गया, 3 दिन 3 रात रुक गया। इस प्रकार से वो उसका ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब उसमें एक साथ आ जाता है। तो कर्म योग में आगे वो कहते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल वर्क इज सिंपली ब्रिंगिंग आउट द पावर ऑफ द माइंड, व्हाट इज ऑलरेडी देयर, जस्ट टू वेक अप द सोल। और फिर वो आगे जाके वो उदाहरण देते हैं कि whatever is actually, it is all power within you, so you should know that कि जो भी आपको बाहर के काम है, कर्म है, they are like blows which are trying to bring out that power, and that is the cause why the giants have to wake up, हमारे अंदर वो एक प्रचंड शक्ति है और उसको अगर बाहर लाना है तो इस प्रकार से कर्म के आघात होना जरूरी है। तो man works with various motives, they cannot be work without a motive। किसी ना किसी चीज के चाहत से या उसके लिए ही कर्म लोग करते हैं। ऐसे ही कोई बिना कुछ उद्देश्य से कर्म करने की प्रायः लोगों की वैसी आदत नहीं होती, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। तो सम पीपल वांट टू गेट फेम, सम एंड दे वर्क फॉर फेम, सम वांट मनी, दे वर्क फॉर मनी, अदर वांट पावर, दे वर्क फॉर द पावर। कुछ यूं काम करते हैं क्योंकि उनको उससे प्रसिद्धि मिलती है, वाह मिलती है, लोग उनको सराहते हैं। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको उससे पैसा मिलता है, कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ताकत मिलती है, तो इसलिए काम होता है। और बाकी और भी ऐसे हैं जो उनको स्वर्ग में जाना है इसलिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे, क्या कह सकते हैं उसको, वो निष्काम कर्म नहीं, उसकी कुछ कामना उसके पीछे है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है, इसके लिए वो कर रहे हैं, कुछ उसके अनफुलफिल्ड डिजायर से उसके लिए वो कर रहे हैं। तो अदर्स वांट टू लिव अ नेम, उनको अपना नाम चाहिए। जैसे उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया कि जब तक इंसान को उसका नाम नहीं मिलता मरने तक, तो उसको लगता है कि ठीक है, उसी के लिए तो मुझे काम करेगा। दैट इज अ बेटर वे आफ्टर ऑल देन विथ अस, दैट वेयर नो मैन गेट्स अ टाइटल अंटिल ही इज डेड। तो जब तक वो मरता नहीं है, चाइना में वो कहते हैं कि किसी को कुछ एक प्रकार से उसका नामाभिधान मिलता ही नहीं। ये तो ठीक ही है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ अस जो पहले से ही नाम के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। बट व्हेन अ मैन डज समथिंग वेरी गुड देयर, they give a title of nobility to his father who is dead or to his grandfather. Some people work for that कि कम से कम मुझे नहीं टाइटल मिल रहा है तो मेरे पिताजी को, दादाजी को कुछ उसके मिले। Some of the followers of certain Mohammedan sects work all their lives to have a bigger tomb to build for them when they die. And ऐसे भी है इस्लामिक इसमें कि मेरी कब्र सबसे बड़ी हो, इसलिए वो काम करते, कुछ इसलिए काम करते कि मेरे पिताजी को और दादाजी को कुछ नाम मिले। और इस प्रकार से लोग काम करते रहते, लेकिन ऐसे शायद ही कोई होगा जो काम इसलिए करता है क्योंकि उसे काम करना है।
कुछ लोग इसके लिए काम करते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि क्योंकि उनका एक तपस है, वो सब तरह की गलत चीजें करती है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक मंदिर बनाते हैं और फिर समथिंग टू द प्रीस्ट टू बाय देम ऑफ एंड ऑब्टेन फ्रॉम देम ए पासपोर्ट टू हेवन। उनको लगता है सब कुछ अपने पाप करेंगे दुनिया भर के, और उसके बाद एक मंदिर बनाएंगे, वहां के पुजारियों को कुछ पैसा वैसा देंगे, उनको खुश रखेंगे, और फिर हमें एक स्वर्ग के द्वार ही खुल जाएंगे। इस प्रकार का कुछ बहुत ही हास्यास्पद कल्पना लेके लोग जीवन भर काम करते रहते हैं। मानो ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ फंसाने की चेष्टा करके भी भगवान शायद फंस जाएंगे। ये ऐसी चापलूसी करके या धोखेबाजी करके अगर स्वर्ग के द्वार खुलते रहेंगे तो क्या कहना है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं वर्क फॉर द वर्क से। There are some who really are the salt of the earth in every country, and those who work only for the work's sake. They do not care for name, they do not care for fame, they do not even care whether they are going to heaven or not. They just work because it is good, and something good will come out of it, and that is their kartavya, that is their inner voice that I have to do that. And there are others who do the work for the poor, to the poor and to help the mankind from still higher motives, because they believe in doing good and to love good. That is what is the whole purpose of doing it. तो ऐसे भी लोग रहते हैं कि उनका नेम एंड फेम seldom brings immediate results as a rule. They come to us when we are old and have almost done with life. तो अलग अलग प्रकार से स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर आपका मोटिव ये भी हो कि आपको नाम और सब उसका शोहरत मिले, उसकी लोग वाहवाही करें, लेकिन वो भी जल्दी नहीं आती है। बहुत साल काम करने के बाद आप बूढ़े हो जाते हैं, तब कोई थोड़ा सा उसको आपका उसका क्रेडिट दे देता है। वो इसलिए जब कोई सेल्फिश मोटिव से भी काम करता है या अनसेल्फिश मोटिव से काम करता है, when somebody works without any selfish motive in view, does he gain anything? Yes, he gains the highest. लेकिन शायद तुरंत उसको पता नहीं चलता या लोगों को लगता नहीं कि उसको कुछ मिल रहा है, लेकिन आप अगर लंबी समय तक उसकी सारी उसका जाना देखेंगे, उसके जीवन का भ्रमण, उसका प्रवास देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इसको भी बहुत सारी चीजें मिली है। इसलिए स्वामी जी आगे कहते हैं कि अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग। बहुत प्रसिद्ध उनका एक वाक्य है, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग, ओनली पीपल हैव नॉट द पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। निस्वार्थता भी बहुत आपको लाभ देती है, लेकिन लोगों को उसके लिए जो उनके पास एक धैर्य चाहिए, एक धीरज चाहिए, रुककर भी आगे जाने की एक प्रकार से उनमें पेशेंस चाहिए, वो उनमें नहीं होता है। और इसलिए उनको ये पता नहीं चलता कि निस्वार्थी होना भी अपने आप में एक बहुत बड़े से बड़े लाभ देने वाली चीज है। इट इज मोर पेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ ऑल्सो। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है उसमें। लव, ट्रूथ एंड अनसेल्फिशनेस आर नॉट मियरली मॉरल फिगर्स ऑफ स्पीच, बट दे फॉर्म आवर हाईएस्ट आइडियल, बिकॉज इन देम लाइज सच अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। तो प्रेम, सच्चाई, सत्य और निस्वार्थता ये केवल कोई नैतिकता के लिए या बताने के लिए बातें नहीं है, ये हमारे सर्वोच्च आदर्श है। और ये इसलिए है क्योंकि उसी में सारी शक्ति है। जो अब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति में इतनी सारी शक्ति आ गई, वो इसलिए आ गई कि उसने ये सारी जो उसका जो विज्ञान है उसके पीछे का, कि शक्ति वहां से आई उसके पास। आध्यात्मिक जीवन का भी, एक कर्मयोग का विज्ञान, उसके पीछे जो एक प्रकार का नियमों का एक रहना है कि इस नियम की वजह से आपको ये शक्ति मिली है। आपने इस प्रकार से आप जिए, अपने स्वार्थता से जिए, आपने हमेशा सच्चाई का पालन किया, सत्य का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, आपने हमेशा प्रेम दृष्टि से सब जगह पर देखा, तो आपको कहीं ना कहीं जाके उसका परिणाम मिलने वाला है। ये नियम है। तो इन द फर्स्ट प्लेस, ए मैन हु कैन वर्क फॉर 5 days और इवन फॉर 5 minutes विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव व्हाटएवर, विदाउट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ हेवन और पनिशमेंट और एनीथिंग ऑफ द काइंड, हैज इन हिम द कैपेसिटी टू बिकम ए पावरफुल मॉरल जायंट। तो वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कभी ना कभी, शायद आज ना हो, लेकिन कुछ 5 मिनट के लिए, 5 दिनों के लिए अगर कोई निस्वार्थता से अपना सारा जीवन व्यतीत करे, कम से कम उस समय के लिए, 5 दिनों के लिए या 5 मिनट के लिए भी, तो आपको पता चलेगा कि और अगर वो उस समय के लिए उसके पास ना तो ये सोच है कि मैं इससे स्वर्ग में जाऊंगा, ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं करूंगा तो मुझे कुछ शिक्षा या मुझे कोई उसके वजह से बहुत बड़ी हानि होगी, मतलब लाभ के लिए भी नहीं, हानि के लिए भी नहीं, स्वर्ग जाने को मिलेगा इसलिए भी नहीं और नरक से बचना है इसलिए भी नहीं। नाइदर लव फॉर समथिंग नॉर फियर फॉर समथिंग। और इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनको वो करना है, उनको लगता है यही मेरा
निहत कर्म या यही मेरा कर्म है जो मुझे करना चाहिए, तो उससे हमें एक इट बिकम ए पावरफुल मॉरल जाइंट। वैसी में जबरदस्त क्षमता आती है, एक नैतिकता की ऐसी पराकाष्ठा उसमें दिखाई देती है कि आप उससे देखने से आश्चर्यचकित लोग हो जाते हैं। इट इज हार्ड टू डू इट, बट इन द हार्ट ऑफ आवर हार्ट्स वी नो इट इज इट्स वैल्यू, द गुड इट ब्रिंग्स। ये बहुत कठिन है, लेकिन हमको पता है कि इससे में ही सारी जो वैल्यू है या जो सबसे अच्छी चीजें होने वाली है, इसी प्रकार से होती है। इट इज द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। ट्रेमेंडस रिस्ट्रेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेटर पावर देन ऑल आउटगोइंग एक्शन। एक बहुत अलग से एक हम कह सकते हैं एक अलग व्यू पॉइंट से स्वामी जी हम सबको ये इसके पीछे का जो ज्ञान है वो सिखा रहे हैं कि अपने आप पर काबू होना, जितेंद्रिय होना, अपने आप के ऊपर संयम होना, इसकी जो शक्ति है, उसमें से जो शक्ति प्रकट होती है, कुछ करने की जब बहुत लालसा हो तब वो न करने की क्षमता होना, अपने आप को रोक पाना, हमारी जो इंद्रियों से सारे हमेशा बाहर जा रहे उनको रोक के एक जगह पर स्थिर कर पाना, ये कई गुना इससे बेहतर और श्रेष्ठ है जो कि हमेशा बाहर जाते कुछ कर्म करते रहते हैं, काम करो, ये करो, वो करो। कुछ लोगों को बहुत एक्टिव होने का बहुत शौक रहता है, या उनकी वो प्रकृति वैसी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, बिना किए बिना कुछ किए आप क्या कर रहे, कुछ नहीं करे तो उनको लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारी मिथ्या कर्मों की ये सारी गति है, इसमें से कुछ भी होता नहीं, जस्ट आउटवर्ड एक्शन विदाउट एनी थॉट बिहाइंड इट, विदाउट एनी रिस्ट्रेंट बिहाइंड इट। तो जब भी कोई बात भी करता है, कहते हैं कि उसके पहले कई सारा मौन होता है, तभी तो बात अच्छी निकलती है। साइलेंस प्रिपेयर्स एंड द स्पीच क्रिएट्स, और द रिस्ट्रेंट और द withdrawal actually creates, and then the actual action makes the power to happen, so ये दोनों का जो जोड़ है, ये दोनों के बीच में जो एक प्रकार का नियम है कि जब तक पहला नहीं होगा तो दूसरे का भी कोई महत्व नहीं है। एक्शन का महत्व उसी लिए है क्योंकि उसमें कुछ शक्ति होती है, तभी होती है जब उसके पहले बहुत ज्यादा संयम से, बहुत ज्यादा ही अपने आप को जीत कर किसी ने इनएक्शन का भी एक प्रकार से तपस किया है। उसने एक्शन नहीं लिए और फिर एक दिन जब वो कुछ करता है, उसके हर शब्द में सामर्थ्य होता है, उसके एक हाव भाव में भी सामर्थ्य होता है। उसने सिर्फ हाथ उठाना है और लोगों को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ एक शक्ति है उसमें, आप रुक जाइए। आपने देखे रहेगा जो सचमुच नेता होते हैं, ऐसे ही बने हुए नेता नहीं, वो नेता का एक हाथ भी लोगों को कुछ सामर्थ्य देने के लिए बस हो जाता है। ये एक एक्शन है, छोटी सी एक्शन है, लेकिन उसमें सामर्थ्य कहाँ से आ गया? क्योंकि उसके पीछे कई सारे दिनों से कुछ विचार चल रहा है, कई सारे वर्षों से कुछ तपस चल रहा है। The carriage with 4 horses may rush down a hill unstained, or the coachman may curb the horses, which is the greater manifestation of power। स्वामी जी पूछते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी है और उसको जो गाड़ीवान है वो उसको ऐसे ही उतार पर छोड़ के बैठा हुआ है कि वो गाड़ी जा रही है, घोड़े जा रहे हैं और गाड़ीवान सिर्फ बैठा है। ये इसमें आपको ज्यादा शक्तिमान ऐसा गति दिखती है, कोई कर्म दिखता है, या उसने वो लगाम खींचकर उसको घोड़ों को रोक के रखा है और कोई भी हिल नहीं पा रहा है, ना गाड़ी आगे जा रही है, ना तस नमस, ना घोड़े जा रहे। इसमें से किसमें से ज्यादा आपको शक्ति का आविष्कार दिखता है? स्वामी जी पूछते हैं, जाने देना या रोक के रखना? तो जो रोक के रखने की प्रक्रिया है उसी में पावर है। तो इसलिए वो आगे कहते हैं कि देयर इज नो लिमिट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ सेल्फिशनेस। ऑल द ग्रेट सिस्टम्स ऑफ एथिक्स preach absolute unselfishness as the goal. Supposing this absolute unselfishness can be reached by a man, what becomes of him? कि जब कोई भी उसको लिमिट नहीं, आप कितने स्वार्थी हो उसकी कुछ मर्यादा ही नहीं। मनुष्य आज अमर्याद रूप से स्वार्थी हो चुका है, यही तो समस्या है। हर कोई अपने अपने स्वार्थ छोटे छोटे केंद्र बिंदु बना के बैठा है। तो इसलिए सारी जो नैतिकता और मूल्यों पर आधारित जीवन की जो सारी प्रणाली है, वो इसी से शुरुआत होता है उसकी कि हमें पहले तो निस्वार्थी बनना, अपना स्वार्थ छोड़ देना। इससे ज्यादा बड़ा आदर्श किसी भी नीति शास्त्र में नहीं है। अपना स्वार्थ छोड़ दो, आप बड़े हो जाओ, अपना छोटे छोटे आपके शरीर, आपके छोटे से प्रपंच, आपके छोटा सा परिवार, आपका छोटा सा यहाँ जो चल रहा है वो जीवन, इससे बृहद सोचो, बड़ा सोचो। मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए हूँ। मैं जो खाना पका रहा हूँ सबके लिए है, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ सारी समाज के लिए है। ऐसा आप सोचोगे, वहीं से वो नीति शास्त्र वहीं से स्टार्ट होता है। A cannonball flying through the air goes a long distance and falls.
Another is cut short in its flight by striking against the wall, and the impact which generates is a tremendous heat. So जो वो और उदाहरण देते हैं कि एक बड़ा तोफ का गोला है, वो अपने ही फ्रीली, उसको कोई रोक नहीं रहा है, अपने ही आकाश में ऐसे ही जा रहा है, लेकिन दूसरा है उसको इस एक दीवार ने रोक दिया तो एक बहुत बड़ी उसमें क्या कह सकते हैं उसको कि एक बड़ा इम्पैक्ट हो गया उसका। ऐसे उसको जब कोई रोकता है तब उसकी शक्ति का पता चलता है कि ये तो गोले की वजह से इतना बड़ा खंडहर बन गया, उसके वजह से वो पूरी दीवार टूट तो गई, या तो फिर वो वहां इतनी बड़ी उष्णता निर्माण हो गई कि बस पूछो मत। तो इसीलिए बाहर जाने वाली सारी जो एनर्जी है वो सारी अपने स्वार्थ की वजह से बाहर जा रही है। अगर आपने स्वार्थ को रोका, इसका मतलब बहिर्गामी सारी आपकी शक्तियों को भी आपने रोक के रखा, और फिर उसी रिस्ट्रेन की वजह से एक प्रचंड शक्ति उससे परावर्तित होती है, उससे बनती है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल विल टेंड टू प्रोड्यूस ए माइटी विल, a character which makes a Christ or Buddha. Foolish men do not know this secret, they nevertheless want to rule the mankind. ऐसे ही खुद के ऊपर विजय पाने से, ऐसे ही निग्रही होने से, अपने आप पर जो काबू पाया है उसके वजह से ही ऐसे महान व्यक्तित्व, उनके प्रचंड इच्छा शक्ति का सामर्थ्य आता है। उससे ही कोई जीसस, कोई बुद्ध और कोई और सारे महापुरुष आते हैं। और ये जो मूर्ख लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती, ये रहस्य समझ में नहीं आता है, और फिर भी उनको लगता है मैं पूरे मानवता के ऊपर राज करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जो राज सच में राज करते हैं, जो सच में सम्राट होते हैं, वो पहले तो स्वराट होते हैं। भारत की कल्पना ही ये है, स्वामी जी भी कहते थे बी एंड मेक, पहले बनो और फिर दूसरों को बनाने की कोशिश करो। जो आड़ में नहीं है वो आपके बाल्टी में कैसे आएगा? जो कुएं में नहीं है, पहले कुएं में पानी होना चाहिए फिर आपके बाल्टी में आएगा। वो दुनिया को देने के लिए भी आपको पहले खुद को कुछ बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का ये सारा रहस्य है, ये सारा ज्ञान है। इसमें कोई भी गूढ़वाद नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे समझा आपको नहीं समझा है। स्वामी जी कहते हैं हर एक के लिए, जैसा ग्रेविटेशनल लॉ है, फिजिकल लॉ है, वैसे ही कर्म का जो सिद्धांत है, उसके जो सारे नियम हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबके लिए है, सबको संभव है, सब कोई उसकी प्राप्ति कर सकता है। द आइडियल मैन इज ही who in the midst of the greatest silence and solitude finds the intensest activity, and the midst of the intensest activity finds the silence and solitude of the desert. He has learned the secret of the restraint, he has controlled himself. तो बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे जो कर्मयोगी होते हैं, ऐसे जो आदर्श पुरुष होते हैं, उनके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि उनको एकांत का और मौन का तब भी अनुभव हो सकता है जब बाहर पूरे बाजार में इतनी सारी चीजें चल रही है। मान लो कोई मछली बाजार हो, कोई बड़ा एक शहर की पूरी भीड़ भाड़ हो, फिर वो अपने आप में मौन है, वो अपने आप में एक ही है, एक एकांत अनुभव कर रहे हैं। या ऐसे भी लोग हैं जो एक पूरी, उनको कुछ भी नहीं है सामने, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है, कोई वस्तु नहीं दिख रही है। मान लो आपको ऐसे किसी निर्जन जगह पर छोड़ दिया है, वहां भी उनको बहुत सारी चीजें करने को सूझती है और वो करते भी है। हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी हमारे क्रांतिकारक थे, जब उनको काला पानी दे दिया था तो वहां भी उन्होंने कुछ कविताएं बनाई, खंडकाव्य बनाई, और कोई कुछ किसी ने गीता का भाषांतर, गीता के ऊपर भाष्य लिखा। तो आप कहाँ है, आसपास क्या है, उस पर कोई निर्भर नहीं। आप जो धर्मव्याद की कथा में स्वामी जी आगे जाके कहते हैं कि वो बाजार में था, उसका काम मांस को काट के बेचना था, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा आवाज है, शोर है, अव्यवस्था है, उसमें भी इन लोगों को अपना अपना एक एकांत मिल जाता है। तो सच में एकांत तो वही है जो लोगों के बीच में रह के भी आपको मिलता है। अदरवाइज आप अकेले, वैसे अकेले बैठ के ढूंढ रहे एकांत कब मिलेगा, तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो जहां आप है वहीं से आपको ये कर्मयोग की शुरुआत करनी है, बिकॉज दे हैव लर्न द सीक्रेट ऑफ रिस्ट्रेन। अपने आप को कैसे बचा के रखना है, अपने आप को कैसे अंदर वश करके रखना है, कुर्मा के जैसे अपने इंद्रिय कैसे अंदर लेने, उनको मालूम है। ये उनका अपने आप के ऊपर जीत पाने का एक तरीका है। और उसको पता है कि जैसा मैंने अभी कहा कि भीड़ में भी वो अकेले हो सकते हैं, लोगों में भी वो एकांत अनुभव कर सकते हैं। और अगर एकांत है तब भी सारे लोग अपने आप ही वो कल्पना से सारे कार्य करके रखते हैं, इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, आपको लगेगा कि ये तो अकेले आदमी थे, सामने कुछ भी नहीं था। कैसे सृष्टि का उन्होंने उसमें से निर्माण किया, एक प्रति सृष्टि निर्माण की। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो यही एक सीक्रेट है, यही आदर्श है कर्मयोग का। वो कहते हैं इफ यू अटेंड टू दैट यू हैव रियली लर्न द सीक्रेट ऑफ वर्क। कर्म का जो या काम करने के पीछे जो रहस्य है, ये आपको तब पता चलेगा।
but we have to begin from beginning and take up the works as they come to us and slowly make ourselves more unselfish. अभी जो काम आपके पास आया है, जहां आप प्रकृति ने आपको रखा है, जहां आपका जन्म हुआ है, जो आपका कर्म आपको मिला है, उसी को करते करते धीरे धीरे आपको ये सीखना है। सब कुछ छोड़ के नया कुछ आपको जीरो से करना जरूरत नहीं, उसी में से आप धीरे धीरे निस्वार्थी होते जाओ, आपको और प्रेरणा मिलेगी और आपको कुछ करने की सूझेगा, वैसे आप आगे निकल जाएंगे। तो वी मस्ट डू द वर्क एंड फाइंड आउट द मोटिव पावर दैट प्रॉम्प्ट्स अस, एंड ऑलमोस्ट without exception in the first years we shall find that our motives are always selfish, but gradually that selfishness will go and unselfishness will come. ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्वामी जी बोलते हैं सडनली नहीं होने वाला है। जो भी आपको लगता है पहले काम शुरुआत करो, फिर अच्छे बुद्धि से करो, प्रेरणा से करो, निस्वार्थी होने का प्रयत्न करते हुए करो, कर्मयोग समझ के करो, फिर भी आपको समझेगा थोड़ा। अब अगर आत्म परीक्षण करेंगे तो शुरुआत में आपको कुछ साल लगेगा, इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ स्वार्थ तो है ही, मैं तो कर रहा हूँ स्वार्थ के लिए ही। लेकिन ये जब आत्मावलोकन करेंगे या अपने आप को जब हमेशा आप पूछते रहेंगे, निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आपको धीरे धीरे स्वार्थ आपका हटता जाएगा और फिर जो कार्य खड़ा हो जाएगा वो सच में एक निस्वार्थ बुद्धि का कार्य हो जाएगा। आज होगा या कल होगा, ऑल होप दैट समडे और द अदर वी स्ट्रगल थ्रू द पाथ्स ऑफ द लाइफ, देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी शैल बिकम परफेक्टली अनसेल्फिश, and then the knowledge which is ours will be manifesting. The powers, if they are concentrated, अगर एक दिन ऐसा आएगा हम सच में हम लोग निस्वार्थ बुद्धि से कर्मयोग करेंगे, उस दरमियान जो शक्तियां हमने संग्रहित की है उसी से सारा ज्ञान आ जाएगा। आगे जाके स्वामी जी एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। कर्मयोग के उनके सारे जो व्याख्यान है उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने संदेश दिया है कि हर कोई जहां भी है वहां पे वो महान ही है। महान होने के लिए एक विशिष्ट जगह, एक विशिष्ट काम, एक विशिष्ट आपका पृष्ठभूमि या पार्श्वभूमि होने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां हैं, आपको जहां रखा गया है आपके कर्मों के वजह से या आपके जन्म की वजह से, आपके कुछ भी आपके जो कारण हैं, आपके आसपास के जो चीजें, वहां से भी आपको महान आप है, आप उसके महानता का परिशीलन और उसका आप हर एक के लिए एक उदाहरण रख सकते हैं। और इसलिए सांख्य फिलोसॉफी हमें कहती है कि इन संस्कृत देयर इज सत्व, रजस एंड तमस, दे आर द थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्चुअली बिहाइंड ऑल आवर वर्क, एंड दीज आर एज मैनिफेस्टेड इन द फिजिकल वर्ल्ड आर व्हाट वी मे कॉल एज इक्विलिब्रियम, एक्टिविटी एंड इनर्टनेस। तो एक समता है सत्व में, एक बहुत ज्यादा कुछ करने की चाहत है रजस में, और बिल्कुल कुछ नहीं करना और वैसे ही अकर्मण्य रहना, ये उसका तामसिक भाग है। तो तमस को इसलिए डार्कनेस या इनएक्टिविटी से जोड़ा जाता है। रजस इज द एक्टिविटी, जो हमेशा एक्शन और रिपल्शन, किसी को करना, राग और द्वेष, कुछ करना नहीं करना, इस प्रकार का हमेशा किसी चीज से दूर भागने के लिए कर्म होता है या किसी चीज को पाने के लिए होता है। दोनों भी उतने ही गलत है, और सत्व जो है वो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हर इंसान में, एवरी मैन हैज गॉट ऑल these three forces. Sometimes the tamas will prevail and we become very lazy. Sometimes we cannot move, we are very inactive, bound down by certain ideas or by mere dullness. At other times the activity prevails and still other times the calm balancing happens. तो हर व्यक्ति में ये तीनों है। कभी हम बहुत ही सुस्त रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, कभी हम बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, और कभी ऐसे भी क्षण हमारे हर एक के जीवन में है जब हम अपने आप ही वो दोनों को बराबर से उसका संतुलन बनाए रख सकते हैं, एक्शन और इनएक्शन का। तो इसलिए अगेन इन डिफरेंट मैन वन ऑफ दिस फोर्सेस कैन बिकम प्रेडोमिनेंट। कुछ लोगों में ज्यादा सत्व होगा, कुछ में ज्यादा राजस होगा, कुछ में ज्यादा तमस भी हो सकता है। तीनों भाव है, लेकिन शायद हो सकता है एक ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हावी होता है किसी व्यक्ति में। हर व्यक्ति में अलग अलग चीजें हावी हो जाती है, अलग अलग चीजें ज्यादा प्राधान्य से हमको दिखाई देती है। तो किसी का स्वभाव स्वीटनेस, कामनेस, जेंटलनेस है, किसी और का है वो ज्यादा एक्टिविटी वाला है, किसी का बहुत ही डल और लेजी है। लेकिन ये सारा जो खेल है वो प्राणियों में, सारा क्रिएशन, सारी सृष्टि में ही, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेन, वी फाइंड द मोर और लेस टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द थ्री डिफरेंट फोर्सेस। तो हर एक में ये तीनों फोर्स स्वामी जी कहते दिखता है और दिखते हैं। और कर्म योगा हैज स्पेशली टू डील विद दिस थ्री फैक्टर्स by teaching what they are and how to employ them. It helps us to do our work better. And human society is a graded organization. We all know about morality and we all know about duty, but at the same time we find that in different countries the significance of morality varies greatly.
मतलब ये सारे सिद्धांतों पर, ये तीनों फैक्टर्स पे कर्मयोग हमेशा काम करता रहता है। जब लोगों को आप इसको सिखाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, अपने जीवन में उसको लाएंगे, तभी हम अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। और सारी जो समाज है, मानव समाज हमेशा एक ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, एक के ऊपर ऐसे रखे हुए स्तरों का एक प्रकार की एक व्यवस्था होती है। और जो हम जानते हैं नीतिमत्ता के बारे में, या किसी नीति शास्त्र के बारे में, या किसी चीज को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे समझने लगती है। लेकिन इसका जो महत्व है अलग अलग देशों में, राष्ट्रों में, महत्व कम ज्यादा हो सकता है इसका, हर चीज का। तो एक चीज में जिसको, एक देश में जिसको मॉरल कहा जाता है, कोई दूसरे देश में उसको इमोरल भी कहा जाएगा। एक को नीति जहां कहा जाता है, उसको दूसरी चीज में, दूसरे देश में उसको अनीति भी बोला जाएगा। जैसे मान लो कि कुछ सिर्फ देश ही नहीं, प्रांत प्रांत में, या विभाग विभाग में, या मनुष्य के छोटे छोटे समूहों में भी कुछ तो व्यवस्थाओं में फर्क होता है, नीतिमत्ता की कल्पनाओं में फर्क होता है, रूढ़ियों में फर्क होता है। तो जैसे उन्हें एक उदाहरण दिया कि जो मौसेरे चचेरे जो है वो आपस में ब्याह करें या नहीं। कुछ समाज में इसको बहुत अच्छा माना जाता है, कुछ में इसको बिल्कुल अनीतिमान माना जाता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, आफ्टर ऑल ये तो आपके बहन और भाई है, थोड़े दूर के हैं, लेकिन वो है। तो इसलिए इसका जो डिटेलिंग है उसमें हमेशा फर्क हो जाएगा। और इसलिए नीतिमत्ता भी भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बहुत पहले से ये जाना कि आप कोई वाटर टाइट या आप कोई फिक्स करके इसके लॉ नहीं बना सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हमेशा वेरी होते रहते हैं। और इसलिए ये कल्पना नीतिमान होना है, नीति शास्त्र होना है, समाज नीति पर होना चाहिए, ये सही है। लेकिन उसमें जो एक स्टैंडर्डाइजेशन या सबके लिए एक ही चीज ये लाने की जो कोशिश होती गई, वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि वैसा नहीं होता है। अभी ड्यूटी क्या होती है? What is the idea of the duty? It also varies from different nations, different places. In one country, a man does not do certain things. People will say he has acted wrongly. In some other countries, people say if he has not done something, yes, he has acted rightly. तो क्या उसको क्या सोचा जाता है, कौन इसको किस प्रकार से देखता है, इसमें कई सारी फर्क आ जाते हैं। जब एक प्रकार का एक उसका वर्ग है, वो बोलता है कि ये सही है, दूसरा बिल्कुल उसको गलत भी ठहरा सकता है, और कोई दूसरा उसको देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित होता है या भय कंपित भी होता है कि ये कैसे हो गया। तो क्रिया तो एक ही है, जो उस इंसान ने किया, कर्तव्य समझ के किया, वो क्रिया तो वैसे ही थी, लेकिन अलग अलग लोगों के, अलग अलग वंशों के, अलग अलग स्थितियों में समाज के या समाज के वर्गों के भी उसके बारे में देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है। तो अभी अपने पास दो ही चीजें बची है। एक तो वे ऑफ इग्नोरेंट, जो सोचते हैं कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ ट्रूथ एंड ऑल द रेस्ट आर रॉन्ग, एंड द वे ऑफ द वाइज, जो समझ जाते हैं कि according to our mental constitution or the different planes of existence in which we are, duty and morality will vary. ये बहुत ही सुंदर भाग है, इसलिए आज का ये सेशन उस पर रोक के फिर नेक्स्ट सेशन में इसको आगे लेके जाएंगे कि उसमें क्या कहा गया है। स्वामी जी ने वो कहते हैं कि दो ही भाग हमारे पास हो सकते हैं। एक तो आप मान लो कि सबके लिए एक ही लॉ है, आप उसको मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आपको उसका दंड मिलेगा। ये गलत और मूर्खों की जैसा व्यवहार है, लेकिन दुर्भाग्य से कई सारे राष्ट्रों ने या कई सारे संस्कृतियों में इसका ही अमल चल रहा है। लेकिन भारत जैसे जो एक प्रज्ञावान, एक प्रकार के बहुत ही बुद्धिमान समाज और व्यवस्था और संस्कृति है, उसमें दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या कहा कि हर एक की जो मानसिक स्थिति है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो रचना है उनकी स्वभाव की या मनस की, वो अलग अलग है। अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग प्रकार के उनके वास्तव में वो लोग जी रहे हैं, और इसीलिए सबके लिए जो कर्तव्य क्या है और नीतिमान होना क्या है, नीतिमत्ता क्या है, उसका भी विवरण अलग अलग होना चाहिए। इट हैज टू बी कॉन्टेक्चुअल, इट हैज टू बी अ वेरी सब्जेक्टिव, और एटलीस्ट इट हैज टू बी अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, सो दैट ईच वन कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट वेयर ही कैन फॉलो इट। Otherwise, it will become just a very watertight and very geometrical and artificial idea, which many of them cannot follow it, and they are just following it out of fear, or they are just following for the sake of it, but they will not get the benefit of it. इस वाक्य पे और इसी बहुत ही सुंदर विचार पे ही स्वामी जी उनका ये विवरण है वो कर्मयोग का आगे लेके जाते हैं। हम भी उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाले सेशन में। बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं।